अगले साल नासिक में सिंहस्थ आ रहे हैं। गंगा की काम आप कर रहे, वैसे गोदावरी का काम प्रायोरिटी। Thank you for granting me the time to speak on this water resources subject. Let me start with the present scenario where there is a lot of scarcity of water with the shadow of El Nino looming over the Indian monsoon. 3, there are legitimate concern about its likely impact on agricultural production and consequently prices of food products. Sir, what is significant is that over the last decade, Indian agriculture has become more robust with record production of food grains and oilseeds. Increased procurement consequently has added huge stocks of food grains in the granaries. India is one of the world's top producers of rice, wheat, milk, fruits and vegetables. However, the worst part is that India is still home to a quarter of all undernourished people in the world, and since on the average almost half the total expenditure of about half the household is on food, increasing prices. Sir, this is a concern where malnutrition is going on. The Adivasis, they were talking about a lot. They are the people, you will find the large number of them are malnutritious just because they are not getting the pure water. Right now, up late you must have heard about the global warming. The water resources is the rain water is the main resource of the water. Second is the glaciers which are melting due to the heat, and then we are getting the water in the Gangas and other rivers. Sir, I am really concerned. If you look at the agricultural products of the last few years, what we are seeing is that the people are diverting from the agriculture farming on something and coming for the local employment in this urban areas. As a commitment of growth, the share of agriculture allied sector in gross domestic product declined from 15.2% during the 11th plan and further to 13.9% in 2013 and 14. Sir, while it still accounts for about 54.6% of total employment, there has been a decline in the absolute number of cultivators, which is unprecedented, from 127.3 million to 108.7 million. This is indicative of shift from farm to non-farm employment, causing real farm wages to rise by over 7% annually in recent years. This is again concern. The people are leaving farming, sir. और मुझे इस बात में होगी सर, सरकार की नज़र में लानी है कि सारी दुनिया में इसके बारे में बहुत गंभीर चर्चा हो रही है अभी। अब ऐसी गंभीर चर्चा हो रही है कि 2025 में तो देश के विभिन्न हिस्सों में पानी के लिए हाहाकार मचा होगा, विकराल स्थिति ले लेंगी। अब आपने देखा हो कि दिल्ली के राजधानी शहर में भी जब पानी की जांच की गई तो 46% पानी गंदा मिला पाया गया। ऐसा पानी हम पी रहे हैं जिससे हमें वापस डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, इलाजों के लिए जाना पड़ रहा है, खर्चा कर पड़ रहा है। ऐसे स्कूल इस देश में है सर कि जो 2 लाख अधिक स्कूल ऐसे हैं जिन्हें पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। बढ़ती जनसंख्या, कृषि के लिए पानी की बढ़ती मांग, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है 2025 तक दुनिया के 2/3 देशों में पानी के लिए किल्लत हो जाएगी। अभी हमारे सीनियर मेंबर्स ने भी कहा, वाजपेयी जी के उदाहरण दे दिया, there will be war for the water, and this is going to happen, sir, if we do not take a preventive measures, not instead of going for a remedial measures. देश की बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण, कृषि सिंचाई को 2025 तक पानी की अनुमानित आवश्यकता 1093 लाख घन लीटर किलोमीटर हो जाएगी। पानी की उपलब्धता के मुकाबले में मांग बढ़ती जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जल विकास रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि विश्व के अनेक हिस्सों में पानी की समस्या और पानी की बर्बादी रोकी नहीं गई तो स्थिति विकराल रूप ले जाएगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के सामने एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि मैं मुंबई जैसे शहर में हूँ। आज मुंबई शहर में जो जल, पीने का जल है, उसमें कटौती की गई है क्योंकि बारिश नहीं हो रही। मुंबई शहर में बारिश शुरू हुई, लेकिन जहाँ कैचमेंट एरिया है और जहाँ से जिन डैम से हमें पानी मिला जाता है वहाँ अभी भी पानी की बारिश कम हो रही है।
ऐसी स्थिति में एक एक बूंद को हमें सुरक्षित करना है। हमने देखा कि मुंबई के शहर में जितनी भी वेल्स थी वो सब बुझाई, जैसे उन्होंने कहा कि कुछ लेक्स बुझाए गए, तालाब बुझाए गए। डेवलपमेंट के चक्कर में जो पानी हमारे पास उपलब्ध है उसे भी हमने बुझा दिया। और जब वक्त आएगा, अगर मुंबई जैसे शहर में आग लगी तो भी पानी नहीं मिलेगा बुझाने के लिए, ऐसी अवस्था हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये जो नदियाँ भी प्रदूषित हो रही है इसके बारे में भी ज़्यादा जिक्र किया है। सभापति महोदय, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने 223 नमूने की जांच की, जो अभी मैंने जिक्र किया था उसमें 46% मिला। और अभी हम आपसे इस विशेष के माध्यम से मैं सरकार की तरफ खास ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आई विल अप्रिशिएट द गवर्नमेंट आल्सो व्हाट वंडरफुल स्कीम्स दे आर ब्रिंगिंग अप हियर। खास करके मुझे नहीं लगता कि इतनी पहले सरकार ने कुछ काम इस तरह से किया होगा। देयर इज अप्रिसिएशन फ्रॉम एवरी सेक्टर ऑफ दिस कि जो काम पहले नहीं हुआ ये काम हमारी सरकार कर रही है। खास करके 2-3 चीज़ों में उन्होंने जहाँ अप्रिसिएशन में खास करके नेशनल गंगा रिवर बेसिन जैसी बात है, या उसके बावजूद और भी कोई जो नदियों का प्रदूषण नियंत्रण करने की बात है उसके बारे में जो ऑगमेंटेशन कर रही है सरकार, उसकी सराहना करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ बात बताता हूँ कि ये जो आपने किया है प्लान आउटले ऑफ ₹1500 करोड़ फॉर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, अब ये जो 1500 करोड़ आपने उपलब्ध किए हैं उसकी तो सराहना, उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये अगर सही समय में वहाँ नहीं गया, अभी जैसे उन्होंने वहाँ सही कहा, मेरे कोंकण, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोंकण एरिया, सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमारे महाराष्ट्र में कोंकण एरिया में। लेकिन आप अगर वहाँ मार्च महीने में जाओगे तो आप पाओगे रिवर बेड्स आर ड्राई, पानी नहीं मिलता। गाँवों में इतनी सबसे बारिश होने के बावजूद मार्च अप्रैल महीने में टैंकर से पानी सप्लाई किया जाता है। ऐसी अवस्था में अगर हम वाटर रिसोर्सेस को उसका संरक्षण नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब हम हाल में ये भी देखा हमने, लोग कुआं खोद रहे हैं और कुआं कितना गहरा खोद रहे हैं सर, 450-650 गहरे पे पानी मिल रहा है। उस पानी की शुद्धता का चेक कोई नहीं करता, पानी आ गया, मिल गया, ले लो, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फिर वापस पता चलता है कि पानी में ज़्यादा सॉल्ट है, पानी में ज़्यादा लोहा है। तो ये सारी चीज़ों की जांच, उनके ऊपर प्रतिबंध आना चाहिए कि अगर आपने इतना पानी लेने के बावजूद वो पानी जब तक उसे सर्टिफाई नहीं किया जाता है, क्या ये सिंचाई के लिए हो सकता है, क्या ये पीने के लिए ठीक है, उसके बारे में कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी आज भी मुझे दिखती नहीं है। और गांव में ये चीज़ों की बड़ी मात्रा में उस तरह से गहरी कुएँ खोदे जा रहे हैं, कुएँ बुझाए भी जा रहे हैं शहरों में। और मुझे आपके पास एक और नज़र में लाना है सर कि आज हम ये स्थिति में ये जो खास करके MOU between, I'll continue, this is one important part I would like to have. Central Groundwater Board, Indian Institute of Remote Sensing sign. तो इस बारे में उन्होंने जो कहा कि Central Groundwater Board and Indian Institute of Remote Sensing sign to facilitate a collaborative study to assess the impact of ground abstraction on land subsidence in northern area. मेरा इतना ही कहना है कि ये नॉर्दर्न एरिया के बजाय सारे एरिया को किया जाए। इसके बारे में जो कमेंट आए वो सर एक मिनट खत्म करता हूँ। द स्टडी विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। मेरी सरकार ने जो स्टडी की उसके बारे में जो अप्रिसिएशन आया, द स्टडी विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड विल हैव अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स अफेक्टेड बाय ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये चीज़ आप जो कर रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ, उसको भी धन्यवाद। और आखिर में एक ही पंक्ति कहता हूँ कि अभी खास करके हमारी मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि क्लीन वाटर की बात चल रही है, अगले साल नासिक में सिंहस्थ आ रहे हैं और आप गोदावरी के नदी के पास मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, थोड़ा ध्यान उधर देकर जो गंगा की काम आप कर रहे वैसे गोदावरी का काम प्रायोरिटी पे करिए ताकि लाखों लोग वहां आएंगे और नदी प्रदूषित करेंगे, उसका प्रतिबंध सही समय पर हो, ये काम आप करेगी ऐसा विश्वास जताकर मैं मेरा मनोगत समाप्त करता हूँ। जय हिंद।